Good afternoon, students. Today we will study the geometrical interpretation of vector product. इससे हम देखेंगे how to find the area of a parallelogram by using vector product or how to find the area of a triangle by using vector product. इसके लिए हम क्या करते हैं? We will suppose let OA be the vector A. This is OA is vector A. OB is equal to vector B, and theta be the angle between them. The angle AOB, the angle between A and B is theta. ठीक है? And this n is a unit vector which is perpendicular to both A and B. ये A है, ये B है. If this is A, this is A, this is B. This is the unit vector which is perpendicular to both A and B. ठीक है? ऐसे ये हो जाएगा. This is ये यूनिट वेक्टर है, ये A को भी परपेंडिकुलर है और B को भी परपेंडिकुलर है. ठीक है? और क्या करो? ड्रा BD परपेंडिकुलर OE and also complete the parallelogram OACB. ये कंप्लीट करो parallelogram. Complete the parallelogram. Complete the parallelogram OACB. Very simple. OA is vector A, OB is vector B, theta is the angle between them, and n is the unit vector which is perpendicular to both A and B. Complete the parallelogram OACB and also draw BD perpendicular here. On BD perpendicular on OA. Now, already हमने पढ़ा है mod of A cross B किसके बराबर होता है? How it is defined? A क्रॉस B किसके बराबर होता है? That is mod A mod B sin theta into n. N is a unit vector perpendicular to both A and B. If we take mod on both sides, therefore mod of A cross B already हमने किया है. इसका mod B किसके बराबर आता है? वो आता है mod A mod B mod of sin theta ही आएगा, because थीटा जो है या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या सेकंड में, उसमें साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है. एंड मॉड ऑफ जो यूनिट वेक्टर एन का मॉड क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये आएगा. क्लियर? अब जो ए है मॉड ए इज सिंपली ओ ए. ठीक है. मॉड बी क्या है? दैट्स ओबी इनटू साइन थीटा. इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. दैट इज BD by hypotenuse is OB. OB cancel. So this is called OA into BD. OA into BD, that is base into perpendicular. And what is that? Base into perpendicular क्या देता है? That is the area of parallelogram. This gives the area of parallelogram OACB. तो आपको याद रखना है, therefore जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर है? दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB. This is, or we can say therefore area of parallelogram OACB किसके बराबर होता है? दैट इज मॉड ऑफ A cross B. That is, in other words, if A and B are the two adjacent sides of a parallelogram, then mod of A cross B gives the area of this parallelogram. और अगर हम area of triangle निकालेंगे, area of triangle OAB, अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे OAB, this triangle, इसका क्या आएगा? That is half of the parallelogram, क्योंकि जो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स बनेंगी. So this is half of the area of parallelogram, that is half of A cross B. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. Area of a parallelogram, if two vectors represent the two adjacent sides of a parallelogram, then its area is given by mod of A cross B. And if they represent the two adjacent sides of a triangle, then the area of triangle is half of mod of A cross B. This is the geometrical interpretation of the vector product.
Now let us solve some questions. The question is, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are a is equal to I minus j plus 3k and this b is equal to 2I minus 7j plus k. These are the two adjacent sides of the parallelogram. You have to find the area of the parallelogram. जो हम ऐसे लिखेंगे, जो area of parallelogram इसके बराबर होता है, that is mod of a cross b. ये होता है एरिया पैरेललोग्राम बिकॉज ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स. ये भी हमने किया. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी और फिर उसका मॉड. दैट इज द आंसर. नाउ सबसे पहले ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी किसके बराबर है, आई जे के. 1 minus 1 3 2 minus 7 1 1 minus 1 3 2 minus 7 k. So this is called I into minus 1 determinant खोलो, minus 1 into 1 minus 1 minus 7 into 3 minus 21 minus 2 minus plus 21 minus j into ये cancel 1 into 1 1 minus 2 into 3 is 6 plus k into this cancels 1 into minus 7, that's minus 7 minus 2 into minus 1 minus 2 minus into minus is plus 2. Employees A cross B आएगा 21 minus 1, that's called 20i. This is 20i minus 5, minus into minus is plus 5j and it is minus 5k. Minus 5k. This is A cross B. आप 5 कॉमन भी ले सकते हो टू मेक इट सिंपल. 5 अगर आएगा ये क्या बनेगा, 4i प्लस j माइनस k. इससे आपको मॉड ऑफ A क्रॉस B कैलकुलेट करना इजी आएगा. Therefore mod of A क्रॉस B आएगा मॉड ऑफ 5. ये मॉड ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ, इसका मॉड क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. मॉड जैसे हम वेक्टर का निकालते, एम्प्लॉइज मॉड ऑफ A क्रॉस B इसके बराबर आएगा मॉड 5 होता है रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, दैट्स 5 और 18 क्या होता है 9 into 2, दैट इज 3 root 2. एम्प्लॉइज मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर है, दैट इज 15 root 2. ये ठीक है, यही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये therefore इसमें समझो therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 root 2. लेकिन एरिया का क्या होता है यूनिट, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट. ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो 1/2 ऑफ इसका हाफ आएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज ए दिस इज बी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है. पहले A क्रॉस B निकालो, वो आपको पता है आई जे के, फिर आई का कोफिशिएंट 1 minus 1 3 1 minus 1 3, B के कोफिशिएंट B में इनके कोफिशिएंट 1 minus 7 1 और 2 minus 7 1. फिर इस डिटरमिनेंट को खोलो, ये आता है. दिस इज 5 कॉमन दिया, दैट्स 4i प्लस j minus 5 minus k. इसका मॉड लिया, दैट्स 5 मॉड 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 15 root 2. दैट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है, तो लेट अस गो टू नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल with vertices A112, B235 and C155. vertices ऑफ ट्रायंगल दिए गए हैं, तो हमें इसका एरिया निकालना है. वेरी सिंपल. तो ये है ट्रायंगल ABC. द ट्रायंगल A
फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स है 1 5 1 5 5। ठीक है, कैसे निकालेंगे ए का ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे, हम कोई भी दो कोइंसिडेंट वेक्टर हो सकते, फॉर एग्जांपल बी ए बी सी, तो ये आएगा 1/2 मॉड ऑफ बी ए क्रॉस बी सी, कोई भी दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स, या कोई लेगा 1/2, अगर यहां से लेंगे ए बी क्रॉस ए सी, ये भी ले सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी, और अगर सी से लेंगे तो आएगा सी ए क्रॉस सी बी, सी ए क्रॉस सी, यानी इन तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। दो कोएफिशिएंट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेके बी ए क्रॉस बी सी, उसी का 1/2 ऑफ द मॉड। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी दो वेक्टर्स कोएफिशिएंट वेक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए आएगा, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस k, जो ओ बी से हम, ओ जो है दैट इज ऑरिजिन, दैट इज नॉट शोन इन द फिगर, वो जरूरी नहीं है दिखाना। ओ बी किसके बराबर आएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ओ सी किसके बराबर आएगा i प्लस 5j प्लस 5k, i प्लस 5j प्लस 5k। So OA is equal to I plus J plus 2k, OB is equal to 2I plus 3J plus 5k, and OC is equal to I plus 5J plus 5k. तो कोई भी दो कोइंसिडेंट वेक्टर्स, लेट अस टेक BA एंड BC। नाउ जो वेक्टर BA है, याद है किसके बराबर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। OA किसके बराबर है I प्लस J प्लस 2k माइनस OB is 2i प्लस 3j प्लस 5k। Therefore BA जो आएगा, BA किसके बराबर आएगा I माइनस 2i, दैट्स माइनस i, प्लस j माइनस 2j माइनस 3j, दैट्स माइनस 2j, प्लस 2k माइनस 5k, दैट्स माइनस 3k। यहां पर भी आप देख सकते हो, दैट इज OA माइनस OB 1i माइनस 2i माइनस i, j माइनस 3j माइनस 2j, 2j माइनस 5 माइनस 3k, ये हो गया BA। और कौन सा वेक्टर हम निकालेंगे BC, आल्सो वेक्टर BC, वो किसके बराबर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, जिसको OC किसके बराबर है I प्लस 5j प्लस 5k, I प्लस 5j प्लस 5k प्लस 5j प्लस 5k माइनस OB किसके बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये आएगा। दिस एम्प्लॉइज या देयरफॉर BC किसके बराबर आएगा, वो आएगा I माइनस 2i, दैट्स माइनस i, देन 5j माइनस 3j, दैट इज प्लस 2j, प्लस 2j, 5k माइनस 5k, दैट इज 0k, दैट इज माइनस i। यहां पर भी देख सो I माइनस 2i इज माइनस i, 5j माइनस 3j इज 2j, 5k माइनस 5k, दैट इज 0k। अब ये हो गया BC। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 ऑफ मॉड ऑफ BA क्रॉस BC, तो BA क्रॉस BC, नाउ BA क्रॉस BC, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ BA एंड BC किसके बराबर आएगा
डिटर्मिनेंट I J K, तो BA के कोएफिशिएंट्स यहाँ I -1 2 -3 -1 -2 -3 और BC के -1 2 और K नहीं है तो 0, तो ये किसके बराबर आएगा I इंटू ये कैंसल दैट इज 0 माइनस -6 -2 -6 +6 माइनस J इंटू ये कैंसल दैट इज 0 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -3 प्लस K इंटू ये कैंसल दैट इज -2 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस दैट इज -2। ठीक है, तो दिस एम्प्लॉइज BA क्रॉस BC, ये आएगा 6I प्लस 3J 6I प्लस 3J -4K, ये हो गया। अब इसका मॉड निकालेंगे, देयरफॉर मॉड ऑफ BA क्रॉस BC, इसका मॉड क्या आएगा, दैट इज रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना बनेगा 36 plus 9 that's 45 plus 16 that is I think 61, it is, yes it is 61, this is root of 61। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको लेना होता तो हो गया आंसर, दिस इज आंसर, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर इसको हम पैरेललोग्राम बनाते फॉर एग्जांपल ACDA तो फिर इसका एरिया ये होता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आता है, वो आता है हाफ ऑफ BA क्रॉस BC। ठीक है, ये किसके बराबर आता है 1/2 ऑफ BA क्रॉस BC, दैट इज रूट 61, सो योर आंसर इज रूट 61/2 स्क्वायर units, that's your answer। so this is how to find the area of a triangle, वेरी सिंपल। ये ट्राइंगल है, सबसे पहले पूछे वेक्टर ऑफ AI प्लस J प्लस 2K, पूछे वेक्टर ऑफ BOB इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 5K, पूछे वेक्टर ऑफ COC इज इक्वल टू I प्लस 5J प्लस 5K। फिर कोई भी दो कोएफिशिएंट वेक्टर्स हो, मैंने लिया BA एंड BC, दो कोएफिशिएंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको BA निकाला, फिर BC निकाला, फिर BA क्रॉस BC का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वो आ गया, इसका मॉड निकाला। अगर पैरेललोग्राम होता तो ये आंसर था, तो लेकिन आपको एरिया निकालना है, दैट्स ऑलवेज हाफ ऑफ दिस। So your answer is 61 by root of 61 by 2 square units. This is the area of the parallel. This is it for today. Thank you.